Hello, am I audible to all of you? Hello, is my sound audible to all of you? Good evening, sir. Good evening. Yes, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, good evening, good night, सब कुछ. अच्छा. Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. अच्छा.
Joe, I had told you earlier about the feedback in the IIT V Lab, but unfortunately, I checked 2 days ago in the website of IITV. Actually, there was some, I think they are developing the website or there is some problem. It was working before. I think in this COVID period, since there is, we are having a COVID period, everything is locked down under. So they are, I think, repairing the website, I think. So once it is up, I'll tell you to register. I was about to post the process of registration. I almost wrote it down so that I could post. So before posting, I checked it for the last time. Is it working or not? And I saw that the site is down. Actually, it is under maintenance, I think. It will be up. So you will get the chance of registering and giving feedback. No problem about that. That will be, it's the work is going on. So today we'll be doing we'll do the experiment from the same portal, just the portion for our how do you say, registration and feedback part. That part is only off. The experiments are available. All the experiments are available. I'll share the page with you. Hello, I have shared a page, Virtual Power Lab DEI. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, Okay. Okay. So this is the first experiment that we are going to conduct. We have in our power system, have you started or studied the insulating part, insulators, the work of insulators in our power systems? Hello? Hello? In your theory class, have you, yes, sir. what are the topics that has been touched till now? In the theory part, what are the topics that you have read in the theory part or you have come across? Tell me, what is going on? Hello? Am I not audible to all of you? Why does it take me so much to ask? Huh? आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इतना बार पूछना क्यों पड़ता तुम लोगों को? हेलो? जितेंद्र कुमार? Yes, sir. आरती असीमा? यस सर। मेरा आवाज क्लियर है? अभी मैं यस सर क्लियर। क्लियर है? तुम लोगों को इतना बार क्यों पूछना पड़ता है एक चीज? 1000 बार पूछूंगा सब इसका उसका मुंह देखते रहोगे क्या? Everyone is waiting for the other person to talk. If you are in a classroom, behave like that you are in a classroom. I'm asking you something, you are supposed to answer. Do you not attend your theory classes? What is going on in your theory class? What are the chapters that has been touched? तुम लोग को आंसर देना है कि क्लास बंद कर दूं मैं? थ्योरी में क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अभी क्लास में? क्या क्या सर हुआ? फॉल्ट एनालिसिस आ रहा था। क्या हुआ था? फॉल्ट फॉल्ट एनालिसिस। और यस सर। और बस फॉल्ट ही, बस और कुछ नहीं हुआ? हेलो? बस फॉल्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है? सर बेसिक कांसेप्ट। मैं तुम लोगों को एक चीज पता नहीं लास्ट दिन बोला था कि नहीं, अभी मैं बोल देता हूँ, एंड लिसन टू मी वेरी क्लियरली. इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू आंसर. 30 बार पूछूंगा, उसके बाद एक जन आके आंसर देता है. क्लास ऐसा नहीं चलता है. तुम मुझको नहीं पता तुम पहले क्या किए हो क्लास में, इन योर प्रीवियस
practical class or theory class, whatever you have done, it is none of my concern. मेरे क्लास में आए हो, पूछूंगा, आंसर देना. 30 बार में एक चीज नहीं पूछूंगा एंड आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन. क्लास में बंद कर दूंगा नहीं तो. ये बात याद रखना. कंप्लेंट करके भी फायदा नहीं होगा. सिर्फ तुम लोगों का क्लास नहीं लेता हूँ मैं. तुम लोग का सीनियर बैच है. सीनियर बैच तुम लोगों का भी, ये तो जो कराऊंगा कंटेंट फिर भी कम है. तुम लोग का सीनियर बैच का बहुत बराबर प्रैक्टिकल करवाता हूँ मैं. और यू आर नॉट माय फर्स्ट बैच. कितना बार बोलूंगा, तुम्हारे पहले 5 बैच पढ़ा चुका हूँ मैं. यू आर प्रोबेबली माय 5th बैच. ठीक है, यह बात याद रखना. इतना बार पूछ रहा हूँ, 30 बार एक चीज बोलने के बाद एक वर्ड आता है उधर से, बंद कर दूंगा, चलेगा ही नहीं क्लास. फिर कंप्लेन करते रहना, एचओडी के पास जाना, प्रिंसिपल के पास जाना, जहां जाना है जाना. रिमेंबर दिस. इतना बार नहीं पूछूंगा मैं. पूछा जा रहा है जब, ये में क्या चल रहा है, क्या चल रही है, यही सब करने करके टाइम पास नहीं होगा क्लास में. याद रखो ये सब चीज. और इसीलिए ये सब इतना मैं 3rd ईयर 4th ईयर के नीचे पढ़ाता नहीं हूँ. तुम ही लोग का एक क्लास है, फिर 3rd ईयर में जाओगे, उसके बाद से मेरा क्लास शुरू होगा. फॉल्ट और बेसिक हुआ है, अभी बोल दिया मैंने. आप ऐसे कम्युनिकेट किया करो. क्लास में बैठे रहने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए नहीं हो तुम लोग. I'm just seeing your name and I'll find out in the attendance sheet. That's it. The class is done. There is no point of doing class like this. There is no point of attending your class like this. फॉल्ट और बेसिक्स हुआ है मतलब तुम लोग इंसुलेटर का काम नहीं पढ़े हो. No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, इंसुलेटर आ जाएगा. Insulators, conductors, everything will come. Obviously, power system is a subject where you study from the production of a power. Production of power means from the plant. Then it goes to the transformers for distribution using our transmission lines. Then in the transmission line there are various kinds of losses. You will read after this. Fault भी होता है transmission line में, वहीं पे होता है. Okay. उसके बाद it gets transmitted. फिर यहाँ पे हम लोग को, तुम लोग का लंबा प्रोसेस है बहुत. ये तो छोटा मोटा मैंने बोला है. फिर तुम लोग के घर के सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है वहाँ पे आता है. फिर वहाँ से स्टेप डाउन करके तुम लोग के घर में कनेक्शन आता है. ये प्रोसेस ये है. तो जाहिर सी बात है, इफ यू आर यूजिंग सो मच हाई पावर, जब प्रोडक्शन होता है इट इज अराउंड 15 के भी 11 के भी, ये तो मतलब थाउजेंड्स में है. जाहिर सी बात है, इतना सारा कंडक्शन होगा. यू हैव टू यूज insulators in between. So there are 3 kinds of insulators. Obviously they have different activities. One, gas, SF6 gas we use. It has a different use. We have solid insulators that you see जब घर से बाहर निकलोगे, लाइट पोस्ट के ऊपर देखना, ट्रांसमिशन में बहुत सारा टाइप का various types of insulators will be hanging. Those are solid insulators. I'll not be telling you the solid insulators because we have the solid insulators that total sample copy actually. I mean examples of each one sample of each kind of solid insulator we have in our college, and I am intending to show that during your when I go back in the class. When the lockdown is over, I want to show you that, not the pictures only. यहाँ पे दिखाऊंगा, you will get to see the pictures only. There is no point of seeing the pictures. एक और होता है कि ट्रांसफॉर्मर और लिक्विड या लिक्विड इंसुलेटर्स, नेमली ऑयल. ट्रांसफॉर्मर ऑयल यहाँ पे क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, देयर आर अदर ऑयल्स वी यूज. मोस्टली वी यूज mineral oils for the dielectrics, mineral oils for the operation of transformers. Now someone please tell me, what do you mean by dielectric strength? अच्छा, पहले ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका होता है, इंसुलेटर का कि कंडक्टर का? पेज विजिबल है ना? इंसुलेटर का. इंसुलेटर का. वर्चुअल पावर वाला पेज विजिबल है ना? हेलो, यस सर.
तुम लोग को जो मैंने एक्सपेरिमेंट का पेज खोला वही विजिबल है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट 4 ऐसा लिखा है Yes, ना? sir. ठीक 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 है, Yes, sir. इंसुलेटर का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? डेफिनेशन, इट्स अ स्कूल लेवल क्वेश्चन, आंसर मी। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? बस ये इतना सा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेटर का होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इट्स अ स्कूल लेवल, तुम लोग 8th 9th में था, बताओ। Yes, sir. Sir, dielectric strength is the maximum voltage which can understand by the insulator without getting damaged is called the dielectric strength of that insulator. दूसरा चीज है, कहीं से देख के मत बोलो, जितना पता है उतना बोलो। सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कोई भी इंसुलेटर का वह वैल्यू है जहां तक बिना डैमेज हुए वो वोल्टेज को वहां हाँ, तक रेसिस्ट कर सकता है। तुम देख के क्यों क्या बोल सर? रहे हो? क्या देख के बोल रहे सर हो? देख के नहीं बोल ऐसा तुमको नहीं याद सर, था? देख के नहीं बोल। ऐसा तुमको वर्ड बाय वर्ड याद था? हाँ सर। विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल मतलब? सर मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो हमारा इंसुलेटर बिना डैमेज किए वहां तक उसको आइसोलेट रख सकता है वोल्टेज को, तो वो उसका इंसुलेटर डैमेज किया डाइलेक्ट्रिक का मतलब स्ट्रेंथ क्या होता है? कहलाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डैमेज मीन टर्मिनोलॉजी सर, डैमेजिंग द इंसुलेटर? डैमेज मीन्स सर अगर मान लीजिए किसी जो इंसुलेशन मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कुछ पार्टिकुलर वोल्टेज है, मान लीजिए 11 केवी है, तो वो 11 केवी तक वो रेसिस्ट कर सकता है, मतलब वो एज ए इंसुलेटर तब तक बिहेव करेगा। लेकिन अगर उस पे हम लोग 11 केवी से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगा और इंसुलेटर नहीं एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द क्या सर? मैक्सिमम, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, द इंसुलेटर विल यस सर, स्टार्ट वो कंडक्टिंग। इंसुलेटर जो है कंडक्टर में बदल जाएगा। The electric strength is that limit of voltage after which, after at the application of which the और इंसुलेटर बिहेव्स insulator, लाइक ए कंडक्टर। yes, like a conductor, ठीक। अच्छा, तुम्हारे पास गौतम Yes, कुमार sir. मंडल और सुमन कुमार बांडवाले दोनों एक साथ क्यों हैं? सर एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ है सर, तो उसके अच्छा। वजह से इसी फोन से अटेंड कर रहे सर। एक साथ हो? सर बर्नवाल बर्मन है सर। ओ सॉरी, तुम लोग एक साथ हो क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कूलिंग। कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, अनम्यूट कर। अच्छा, ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कूलिंग। ट्रांसफार्मर, एक तो ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेटिंग। जो ट्रांसफार्मर का कॉइल होता है, इट इज इंसर्टेड, तुमको यहाँ पे एक थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर इक्विपमेंट, आई विल शो द इक्विपमेंट, हियर इज द इक्विपमेंट्स। यहाँ पे क्या है, थ्योरी प्रोसीजर उतना बढ़िया है नहीं, तो मैं तुमको बोल दूंगा। और कनेक्शन डायग्राम के लिए मेरे पास दूसरा फिगर है, यहाँ पे मैंने खोल कर रखा है ऊपर टैब में। आई विल शो यू द फिगर्स, इट विल बी बेटर। यहाँ पे भी है, बट आई विल शो यू अ बेटर वर्जन एंड देन आई विल शो यू अ वीडियो हाउ इट वर्क्स। पहली बात तो यह है, द वर्क ऑफ डाइलेक्ट्रिक oil or the transformer oil is to first for the insulating purpose of the transformer. Number two is for the, it acts as a cooling medium, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग रहता है, तुम लोग को पता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रहता है दोनों तरफ, N1 and 2। those windings are inserted inside the transformer oil, right? The core and windings are fully immersed, that is inserted, अंदर रहता है पूरा in the transformer oil। क्यों? टू प्रिवेंट इट, एक तो इंसुलेटिंग हो गया, एक कूलिंग हो गया, तीसरा क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द कोर पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज बाहर आएगा जब, तो बाहर हवा में इट विल कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जंग नहीं हो जाता है? कोई लोहा का चीज, Yes, sir. लोहा का चीज जब बाहर रखते हैं, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर ऑफ द एयर, उसमें जंग हो जाता है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक, ऑल ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स, हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका एफिशिएंसी सबसे हाई होता है और सबसे मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफार्मर। यही खराब हो, जिसका वाइंडिंग खराब हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैं बोलता हूँ, तीन तरीका का ट्रांसफार्मर होता है।
There are three types of transformer oil that we use. एक होता है मिनरल ऑयल, दूसरा होता है सिलिकॉन बेस्ड और एक होता है बायो बेस्ड. सबसे बढ़िया obviously it is the mineral based. We prefer mineral based. Mineral based का the advantages we have is obviously it has good electrical and cooling properties. इसके कारण क्या होता है, hence it provides most cost effective solution. Cost effective क्यों, कहाँ पैसा बचता है मेरा, अगर इलेक्ट्रिकल और कूलिंग प्रॉपर्टी अच्छा होगा, ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होगा, the core will remain intact. एक तो वहाँ का, दूसरा we are getting it from the nature. It is since it is mineral, its lasting is longer. अब तुम नेचुरल कोई चीज लोगे और आर्टिफिशियल सिलिकॉन बेस्ड या सिंथेटिक करके कुछ बनाओगे, नॉर्मली द नेचुरल वन इज नेचुरल विल लास्ट मोर, द ड्यूरेबिलिटी विल बी मोर, है ना, हेंस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. अब तुमको मैं एक फॉर्मेट दिखाता हूँ. फॉर्मेट मतलब इक्विपमेंट. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल में यही चीज हम लोग को लगता है, पोर्टेबल ऑयल टेस्टिंग सेट. अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि तुम देखो ये है ट्रांसफार्मर ऑयल एक कटोरा के अंदर, या ये है ट्रांसफार्मर ऑयल, ये हुआ ये, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये हम लोग टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा सैंपल लिए हैं. मान लो कि लेट्स से देयर इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल इज अराउंड 100 लीटर्स. अब पूरा 100 लीटर उठा के लेके तो नहीं आओगे ना, उसका एक सैंपल लोगे. तुम्हारा बॉडी का मान लो ब्लड टेस्ट होता है, तुम्हारा पूरा खून थोड़ा निकाल लेगा, थोड़ा सा निकालेगा खून, वहां से लेके उसका टेस्ट करेगा, उससे द कंडीशन ऑफ योर बॉडी विल बी चेक्ड. सिंपली इन द सेम मैनर बहुत ज्यादा तेल होता है जिसके अंदर पूरा ट्रांसफार्मर इमर्स्ड रहता है, तुम समझ रहे हो कितना बड़ा है, तो वहां से थोड़ा सा कप में एक्चुअली 40 ml तेल लिया जाता है, थोड़ा सा लिया जाता है, और ये जो कंटेनर है, या ये कंटेनर है, यहीं पे दिखाता हूँ, ये सीधा है, इस कंटेनर के अंदर भर दिया जाता है अप टू 40 ml. यहाँ से यहाँ तक 40 ml रहते, इसमें कम है थोड़ा सा, इसीलिए मैं दूसरा पिक्चर तुमको दिखाऊंगा. पहले ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट की लिस्ट में है, देख लो. नीचे 20 ml रहता है, ऊपर 20 ml, नीचे 20 ml, टोटल 40 ml is taken. These two are conductors. ठीक है, these two are conductors. It is kept at a certain gap, a gap of around 2.4 mm. ये जो देख रहे हो गैप सेटिंग गॉज दिख रहा है? हेलो, यस सर. हाँ, नीचे गैप सेटिंग गॉज, इससे हम लोग मेजर करते हैं. इससे स्केल टाइप आइटम, स्केल नहीं, छोटा सा. दिस पार्ट देखो, एक दाग है, दिस पार्ट इज थिक, इसका दो एंड होता है, इधर एक और इसका शायद उल्टा तरफ होगा, पिक्चर ऐसा है. एक साइड है 2.4 mm और एक साइड है, इधर का साइड होगा 2.5 mm. ये जो गैप हम लोग सेट करते हैं, द गैप शुड बी सच दैट ओनली द 2.4 mm प्लेट इज पास्ड थ्रू, ओनली 2.4 mm पास करेगा. और उल्टा तरफ 2.5 क्यों है? 2.5 जब देगा तो वो पास नहीं करेगा. द गैप इज सपोज्ड टू बी सो एक्यूरेट. ठीक है, पहला. अब सिंस दिस इज इंसुलेटर और ये जब कंडक्टर है, तेल तो इंसुलेटर है. नाउ these two things are conductors. इसको क्या करेंगे? If you see in the other than these two pictures, you will see their connection. There is a connection. See, there is a connection. There is a HV transformer, high voltage transformer. A high voltage transformer is kept here. There is a variac. We vary the voltage given. We vary the transformer. Sorry, vary the voltage. Vary करते करते इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे. बढ़ाते मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 kV. अब तो 30 kV कुछ नहीं होगा. Obviously तुम जैसे according to your definition of dielectric strength, when the voltage exceeds the limit of the dielectric strength of the material, that is exceeds the dielectric strength of this given oil, if it is 30 kV, up to 30 kV कुछ नहीं होगा. तुम हीट दो, वोल्टेज बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट इज सपोज्ड टू स्टॉप द वोल्टेज. आफ्टर 31 kV द ब्रेकडाउन विल ऑकर. ब्रेकडाउन होने के बाद तो हमको पता कैसे चलेगा? तो लिक्विड के अंदर है, देयर विल बी अ फ्लैश, और यहाँ पे एक मीटर है,
ये देखो मीटर है, मैं तुमको पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये एक मीटर है, इस मीटर को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अब तो कितना वोल्टेज में एक फ्लैश हुआ, ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा, इट विल बी जस्ट अ फ्लैश, एक फ्लैश होगा, हम वो रीडिंग नोट डाउन करेंगे। नाउ व्हेन वी आर चेकिंग ए रीडिंग फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, जरूरी नहीं कि इसका है, फॉर एनी सर्किट थ्योरी एक्सपेरिमेंट और एनी मशीन एक्सपेरिमेंट, वी नेवर टेक वन रीडिंग, क्योंकि एक रीडिंग गलत हो ही सकता है। वी हैव ब्रॉट ए सैंपल हेयर, उसमें थोड़ा हवा आ सकता है, एयर बबल्स आ सकता है, थोड़ा मॉइस्चर आ सकता है, इसके लिए प्योर ऑयल तो रहेगा नहीं, इसलिए हम लोग कभी एक टेस्ट नहीं लेते, हम लोग थोड़ा रेस्ट देते हैं उसको, एक रीडिंग ले लिए, फिर 1 मिनट तक रेस्ट दिए, फिर वेरिएक को 0 में ले जाएंगे, देन द वोल्टेज विल बी इंक्रीज्ड अगेन। मान लो 31 में ब्रेक हुआ है, इस बार 30.5 में ब्रेक हुआ, मतलब फ्लैश हुआ, फिर हम लोग नोट डाउन करेंगे। ऐसे हम 5 या 7, we have to take obviously more readings, not 5 only, 7 या 8 रीडिंग, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। उसके बाद उसके एवरेज निकालेंगे, 7 या 8 रीडिंग ले लिए, उसके एवरेज निकालेंगे, देयर इज ए सर्टेन वैल्यू, जिसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर इतना रेटिंग रहा ऑयल का तो द ऑयल इज गुड फॉर यूज, ठीक है। मैं तुमको वैल्यू कुछ बता देता हूँ, इसका कुछ पॉइंट होता है, एक होता है पोरिंग पॉइंट, क्योंकि पहला काम मैंने क्या बोला था, कूलिंग डाउन ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्योंकि दोनों कॉइल से ट्रांसफार्मर का स्टेप अप स्टेप डाउन, या दोनों साइड में जो N1 N2 दोनों कॉइल होता है, दोनों कॉइल में से करंट पास हो रहा है, एनर्जी पास हो रहा है, इट इज ऑलरेडी इन द हीटेड कंडीशन, तो उसको कूलिंग करना पहला काम, देयरफॉर ऑब्वियसली इसको ठंडा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल के जब लाते हैं, इसका पोरिंग टेम्परेचर, द पोरिंग पॉइंट, जितना टेम्परेचर में हम लोग ट्रांसफार्मर में डालने के लिए डालते हैं कंटेनर के अंदर, द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर ऑयल इज -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस, और मे बी लो। ये कुछ रेटिंग है हम लोग को जानने के लिए, इट्स बेटर फॉर अस टू नो, बाद में इंडस्ट्री में जाएंगे जब, तब इंडस्ट्री एप्लीकेशन में ये सब पता चलेगा, इट इज बेटर फॉर अस टू नो। -40 डिग्री है पोरिंग पॉइंट। एक इसका एक फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस और मोर, फ्लैश पॉइंट मतलब इग्निशन पॉइंट, है ना, -40 से लेके 140 तक, इतना तक हीट विथस्टैंड कर सकता है। अच्छा, एक होता है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, जो होता है इसका, वो होता है अराउंड 28 to 30 kV RMS वैल्यू। अगर 28 kV RMS वैल्यू होता है, तो इसका पीक वैल्यू क्या होगा बताओ सर 28 into √2 कितना होता है? तुम एक ही लड़का बोल रहा है क्या तब से? बाकी सब कहाँ है, सो गया है? बोलिए 39.59 3959 मतलब अराउंड 40। तुम देखना, जब तुम गूगल में ढूंढोगे व्हाट इज द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, मोर और लेस इट इज अराउंड 40 लिखा रहेगा, मोर और लेस। 39.5 में समझ रहे हो, इट इज अराउंड 40। मैक्सिमम टाइम्स इट इज या तो लिखा रहेगा, या तो देखना लिखा रहेगा 28 केवी, नहीं तो 30 केवी। 28 30 केवी लिखा है, इट इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है। पीक चेक करोगे इट इज अराउंड 40, और 30 का तुम शायद पीक करोगे तो तुम्हारा शायद आएगा 42, अराउंड 42 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और एक चीज होती है, इसको देख के कैसा पता चलता है, इट इज पेल येलो इन कलर। अच्छा, तुम लोग जितना बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं पे यस सर रिपीट, कहीं पे अगर रिपीट करना होगा मुझको बोलना, ऐसा नहीं कि एक ही बार बोलूंगा मैं। रीडिंग क्लास तो चल नहीं रहा है, और मुझको ये समझ में आ रहा है सर कि तुम पोरिंग टेम्परेचर एक बार बताएंगे सर? कौन सा पोरिंग टेम्परेचर सर? बोइंग टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस या कम। नहीं सर, वो क्या होता है सर? जब हम लोग कंटेनर में, जिस कंटेनर के अंदर रहता है ट्रांसफार्मर, उसको डालते हैं ना अंदर, अब देखो, यस सर। जब डालेंगे तब ठंडा कंडीशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जब ट्रांसफार्मर के कांटेक्ट में आएगा, जाहिर सी बात है उसमें
ऐसा तो नहीं कर सकते बाल्टी में पानी रख दिया ठंडा हो जाएगा। इसको तेल डाल के नहीं रख सकते कि ठंडा हो जाएगा, तेल डालने के बाद गर्म ही होगा, ठंडा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्शन में आएगा, उसके बाद वहां से एनर्जी पास करना शुरू होगा, इट विल नेवर कूल डाउन, वी हैव टू कूल डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर। इसीलिए जब डालते हैं उतना टेम्परेचर मेंटेन करके डालते हैं, समझ रहे हो बात? सर -40 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रांसफार्मर तुमको क्या लगता है छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है? अरे पानी नहीं नहीं है रे। सर, पोरिंग टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस करके डालेंगे। पानी थोड़ी है रे, जम जाएगा, तेल है। हाँ मतलब सर टेम्परेचर उतना डाउन करके डालेंगे। तुमको क्या बोला, काम क्या है मेरा? मेरा काम क्या है? ठंडा करना काम है ना। ठंडा करके अगर नहीं वही सर। डालेंगे, अगर ठंडा करके नहीं डालेंगे, ट्रांसफार्मर इज ऑलरेडी देयर, एक बार ट्रांसफार्मर इंसर्ट हो गया तेल के अंदर, तो टेम्परेचर इज बाउंड टू इंक्रीज, है ना। यस सर। तुम्हारा जब हाथ यस जल सर। जाता है उसके ऊपर तुम बर्फ नहीं लगाते हो, बर्फ, हाथ में बर्फ लगाने से बर्फ का टेम्परेचर कमता है कि गल जाता है बर्फ? बर्फ गल जाता है, बर्फ गल जाता है सर। मतलब बर्फ यस का सर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तेल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब बाद में जब इंक्रीज ही करेगा, तुमको डिक्रीज करके नहीं देना है। तो सर -40 करके देंगे सर, तो अगर हम लोग उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे डालेंगे सर तो क्या असर आएगा? हमारा वेपर हो जाएगा, क्या असर आएगा? क्या तेल नहीं देखे हो तुम पेट्रोल पंप में क्या करते हो यार? तो सर उसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है ना सर, तो अगर नॉर्मल सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी डालेंगे तो उतना असर तो नहीं है। सराउंडिंग टेम्परेचर, तुम ट्रांसफार्मर के हीट को इग्नोर कर रहे हो। नो सर। तब तुम ट्रांसफार्मर का हीट सर मतलब आज आप का, बता रहे सर कि अगर हम लोग रनिंग कंडीशन, सर मतलब रनिंग कंडीशन में अगर हम लोग डालेंगे तो -40 पे डालेंगे। पहले रनिंग कंडीशन में जाके गर्म हो गया ना, रनिंग कंडीशन में जाके तुम, एक तो रनिंग कंडीशन में तुम ओपन क्यों रखोगे ट्रांसफार्मर को, ये तुम मुझको बताओ। हाँ, तुम ये कहीं पे पढ़े हो क्या? नो सर। अरे हो सकता है तुम कहीं पे थ्योरी देखे हो, नो सर कहने पे क्यों, देखे हो क्या कहीं पे? नहीं नहीं सर। ठीक है, वही तुम सर जब, डिप्लोमा में थोड़ा बहुत देखे थे वही सर। क्या कुछ था उसमें, बोलो। नहीं सर, ये टर्म पता नहीं था सर, इसलिए टर्म के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। नहीं, कुछ थ्योरी अगर देखे हो तो मुझको बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हाँ नहीं हाँ है कि, ओके ऐसे सर। नहीं है ओके सर। मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ, हो ही सकता है। मैं तुम लोग का थर्ड ईयर में नेक्स्ट 6 सेम का 2 को लैब है मेरा, उसका एक सर्किट करवा रहा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब फाइनल रीडिंग में मेरा एक गलती हुआ था, मुझको समझ में नहीं आता, मैंने एक पैरामीटर गलत लिया था। तो आप तुम लोग का बाद में जब सिमुलेशन का लैब आएगा पता चलेगा, मैटलैब का काम मत पता चलेगा, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर से मैं एक सर्किट डिजाइन करके उन लोग को दिखा रहा था। तो फाइनल एक ग्राफ था, उसमें मैंने पैरामीटर मैंने चेक नहीं किया, मैंने डबल क्लिक करके ले लिया, चेक करना चाहिए था, मेरा ही गलती था। तो ग्राफ थोड़ा गलत आया था, मुझको एक लड़का बोला सर ऐसा नहीं आएगा, मैं बोला ठीक है मैं देखूंगा। बाद में पता चला मेरा ही गलती था, फिर मैं नया एक वीडियो बना के उन लोग को दिया था कि तुम लोग बोला था, सही बोला था, इसमें मेरा पैरामीटर गलती है, तुम लोग देख लो। तो तुम लोग को अगर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूंगा मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं होता है। और सब इंसान को हर वक्त सब कुछ नहीं पता होता है, तुमको कुछ मिलेगा तो बोलना। अच्छा, तुम जो बोल रहे थे ट्रांसफार्मर चालू करके फिर डालेंगे, 3 काम मैंने क्या क्या बोला तुमको, वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। पहला, इंसुलेटिंग पर्पस, दूसरा कूलिंग पर्पस, तीसरा अगर ट्रांसफार्मर का नीचे रहेगा, ओपन एयर में ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग नहीं रहेगा तो उसका कोरोशन नहीं आएगा, मतलब जंग नहीं आएगा। तुम ट्रांसफार्मर को ओपन छोड़ दोगे, बोलो। नो सर। ट्रांसफार्मर को अगर तुम ओपन छोड़ दोगे, जो तुम बोल रहे हो चालू करके फिर डालेंगे, तब ओपन ही छोड़ दिया हुआ ना, जब तक डालोगे तब तक ओपन है। when it is open, the windings of the transformer, the windings of the transformer are prone to get oxidized, oxidized जल्दी हो सकता है।
यही अफोर्ड करना काम है कि नहीं मेरा? यस सर, यस सर। तब मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख रहे हो मतलब डाइलेक्ट्रिक ही देखना है, हमारा काम खाली इंसुलेटिंग नहीं, हम टेस्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको टेस्ट करने से इसका जो रीडिंग मिलेगा इससे हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। हम टेस्ट इसका कर रहे हैं, पर्पस यही से, पर्पस सिर्फ यही नहीं है, पर्पस ऑब्वियसली इट्स अ बिग पर्पस, इट्स अ ह्यूज पर्पस, बट दिस इज नॉट द ओनली पर्पस, है ना। एक बार जंग हो जाएगा तो मेरा वायरिंग खराब होगा, तुमको कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोले? दिस इज द मोस्ट efficient machine that we have in our entire department, entire branch, electrical engineering branch। उसको हम खराब करने दे देंगे क्या? नो सर। There is no point of generator and motor if there is no transformer, आएगा ही नहीं कनेक्शन। अच्छा, इसका तो 3 मिनट बाकी है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। टेस्टिंग का पहले मैं कुछ चीज तुम लोगों को बोल देता हूँ। ये जो तेल होता है, जो तेल हम लोग लेते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए व्हेन सिलेक्टिंग द ऑयल। बाद में तो लेके आएंगे, बाद में विल बी यूजिंग इन द क्या कहते हैं इंडस्ट्री और वेयर द ट्रांसफार्मर इज, व्हाइल सिलेक्टिंग द ऑयल सम देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी शुड मेंटेन, दैट वी शुड सी। हाँ, एक तुमको मैं बोलता हूँ, यहाँ पे क्लास में शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा कैमरा ऑन नहीं है और तुमको लिख के ये सब दिखा था, तुम लोग को अच्छा समझ में आता शायद। अभी तो मुंह से बोल रहा हूँ, मेरा एक्चुअली फोन का स्टैंड नहीं है कैमरा का, मैं एक लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास से, इट विल बी इजियर फॉर मी। तो मैं जो बोल लूंगा मैं लिख के दूंगा, तुम लोग को भी नहीं तो अगर छूट जाए। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या क्या है? द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफर ऑयल शुड बी हाई। ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है, हाई होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा पैरामीटर में हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ट्रांसफार्मर का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक तो हाई होना चाहिए। दूसरा, गुड हीट डिसिपेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल शुड बी देयर। गुड हीट डिसिपेशन मतलब, डिसिपेट मतलब चारों तरफ जो चला जाता है। बाकी सब लोग कहाँ पे रहे? जूही कुमारी, जूही कुमारी, Yes, तुम लोग को बात करने बोला मतलब एक जन बोल रहा है तब से, गौतम कुमार मंडल और शुभम वर्मन। बाकी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? विकास कुमार महातो, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। कहीं पे होगा तो पूछना। और ये मौसम मिश्र और स्नेहा कुमारी, ये दोनों ऑडियो ऑफ करके रखा है, ऑडियो ज्वाइन इन एक ही ऑडियो से। ठीक है, द प्रॉपर्टीज दैट वी चेक, पहला हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा गुड हीट ट्रांसफर और हीट डिसिपेशन। हीट ट्रांसफर और हीट डिसिपेशन, गुड मतलब हीटिंग कहाँ पे होगा? कॉइल के चारों तरफ होगा। अगर हीट का डिसिपेशन पावर अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा? हीट वहीं पे जम जाएगा, इट विल डैमेज द कॉइल्स, ठीक है। अगर हीट जल्दी डिसिपेट कर जाएगा तो क्या होगा? कॉइल का आसपास से, अगर मान लो यहाँ पे कॉइल है और ये टोटल ऑयल है, अगर हीट यहीं पे रह जाएगा क्या होगा? कॉइल ही डैमेज हो जाएगा ना। और जल्दी डिसिपेट कर जाएगा मतलब इधर इधर इंसुलेशन चारों तरफ हीट जल्दी चला जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं कंपेरेटिवली? मान लो ये यहाँ पे कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है, और ये टोटल Yes, sir. तेल है। अगर हीट हुआ, तेल का हीट डिसिपेशन अच्छा नहीं है,